بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب موت کا منظر کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جنت کا بازار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعے کو آئیں گے۔ ان پر شمالی جانب سے ہوا چلے گی، ان کے چہروں اور کپڑوں پر کستوری اور ہر قسم کی خوشبوئیں پھیلا دے گی۔ اپنے اہل کی طرف جب یہ لوٹ کر آئیں گے تو وہ کہیں گے، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ انہیں کہیں گے، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، تمہارا بھی حسن و جمال ہمارے بعد زیادہ ہو گیا ہے۔ وضاحت حدیث۔ قیامت میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے، اگرچہ قیامت میں سورج اور رات دن کا وجود نہیں ہوگا، لیکن جمعہ اور عیدین کا اعتبار کرنا یا مبارک دنوں میں زیارت کرنا وغیرہ، ان تمام چیزوں کی دارمدار اس پر ہوگی۔ جنت میں رات اور دن کی پہچان نور سے ہوگی۔ جب نور پر پردے لٹکا دیے جائیں گے تو رات ہوگی، اور جب پردے ہٹا دیے جائیں گے تو دن ہوگا۔ اہل جنت بھی علماء کے محتاج ہوں گے۔ بے شک اہل جنت بھی علماء کے محتاج ہوں گے، اس وجہ سے کہ وہ ہر جمعے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ رب تعالیٰ انہیں کہے گا، جو بھی چاہتے ہو اسی چیز کی تمنا کرو، یعنی مجھ سے طلب کرو۔ اب جنت والوں کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس چیز کی طلب کریں۔ وہ علماء کی طرف توجہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ہم رب تعالیٰ سے کیا مانگے۔ علماء انہیں بتائیں گے کہ تم فلاں فلاں چیزوں کی طلب کرو۔ وہ جنتی لوگ جنت میں علماء کے اسی طرح محتاج ہوں گے جیسے وہ دنیا میں ان کے محتاج تھے۔ جنت میں جمعے کا نام یوم المزید، زیادہ نعمتوں کے حاصل ہونے کا دن بھی ہوگا۔ اس سے واضح ہوا کہ جمعے کے دن کو دنیا کی طرح جنت میں بھی باقی دنوں پر سرداری حاصل ہوگی۔ اہل عرب شمالی جانب سے چلنے والی ہوا کو برکت والی، بارش والی ہوا قرار دیتے ہیں، اس لیے ذکر فرمایا کہ ان کے چہروں اور کپڑوں کی شمالی جانب سے چلنے والی ہوا کستوری اور طرح طرح کی خوشبوؤں سے معطر کر دے گی، جس سے ان کی شکل و صورت اور زیب و زینت میں حسن و جمال زیادہ ہو جائے گا۔ چونکہ تمام اہل جنت جمعے کے دن بازار میں جائیں گے، اس لیے جب لوٹیں گے تو قبیلے کا سربراہ اپنی جنتی ازواج سے کلام کرے گا۔ وہ اس سے کلام کریں گی کہ ان کا حسن و جمال زیادہ ہو چکا ہے۔ اپنے حسن و جمال کی زیادتی کا علم تو ہو نہیں سکے گا، دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے تمہارا حسن و جمال زیادہ ہو گیا ہے، حالانکہ ہر ایک کا حسن و جمال زیادہ ہوگا۔ اہل جنت کے فضائل۔ جنت میں اعمال کے مطابق نورانیت کا حصول ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کے لوگ 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے، پھر ان کے بعد بہت زیادہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہوں گے۔ ان کے دل ایک آدمی کے دل ہوں گے، ان میں کوئی اختلاف اور بغض نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی جماعت انبیاء کرام کی ہوگی، جن کے چاند کی طرح چمکتے چہرے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ جماعت چہرے سے دخول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خاص ہے۔ جب مشہور بات یہ کہ چاند کی نورانیت سورج کی نورانیت سے حاصل ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جائے تو چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، یعنی وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ اس ضابطے کو سمجھنے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام کو چاند کی صورت عطا کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی صورت عطا کر کے یہ ظاہر کیا جائے گا کہ تمام انبیاء کو نورانیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حاصل ہو رہی ہے۔ وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء کرام کے مرتبے کے لحاظ پر قریب ہوں گے، وہ اولیاء کرام اور علماء عظام، شہداء کرام اور نیک متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ جنتی لوگوں میں اتفاق و اتحاد ہوگا، ایک دوسرے سے محبت ہوگی، تمام لوگوں کے دل ایک آدمی کی طرح ہوں گے، یعنی جس طرح کسی آدمی کو اپنے آپ سے اختلاف نہیں ہوتا، اسی طرح وہاں ایک دوسرے سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور نہ ہی دلوں میں کوئی کھوٹ کینہ ہوگا۔ یہی وجہ ہوگی کوئی ایک دوسرے سے بغض و عناد نہیں رکھے گا۔ جنت کا حسن و جمال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟
تو آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिनल मा, पानी से। हमने पूछा जन्नत को किस चीज़ से तख्लीक किया गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोने और चांदी की ईंटों से, और ईंटों में चूना सीमेंट की जगह बहुत ज़्यादा खुशबूदार कस्तूरी को इस्तेमाल किया गया है, और जन्नत की नहरों में मोतियों और याकूत की तरह संगरेजे होंगे, और उसकी मिट्टी की जगह ज़ाफ़रान होगा। यानी नरम, जर्द और खुशबूदार मिट्टी होगी। सफ़ेद, जर्द और सुर्ख रंग से मुज़य्यन किया गया है, और सब्ज़ दरख्तों से उसके हुस्न व जमाल को और ज़्यादा दोबाला किया गया है। जन्नती लोगों की उम्रें और खूबसूरती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत वाले लोग जुर्द मुर्द होंगे, सुरमा लगा होगा, उनकी जवानी ख़त्म नहीं होगी और उनके कपड़े पुराने नहीं होंगे। दूसरी रिवायत में है उनकी उम्रें 30-33 साल होंगी। वजाहत हदीस, जुरू का मायनी जिसके जिस्म पर बाल ना हो, और मुरू का मायनी जिसकी दाढ़ी ना हो। मतलब ये है कि वह खूबसूरत और नरम और नाजुक होंगे, और कुदरती तौर पर उनके आँखों की पलकों में स्याही इस तरह रख दी जाएगी जैसे ये मालूम होगा कि सुरमा लगाया हुआ है। जवानी ख़त्म नहीं होगी, उसकी तफसील दूसरी हदीस में है। एक आदमी को 100 आदमी के बराबर ताकत दी जाएगी। दुनिया में 100 आदमी जितनी ताकत रखते हैं, जन्नत में उतनी ताकत एक आदमी को हासिल होगी। यानी इस तरह अज़वाज से मुजामत की कुदरत होगी। जन्नती हमेशा जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा उसको नेमतें हासिल होंगी। वो कभी फ़कीर व मुख्ताज नहीं होगा, वो हमेशा बाकी रहेगा, उस पर कभी मौत नहीं आएगी। जन्नत की नहर कौसर। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर क्या है? आपने फरमाया ये वो नहर है जो अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में अता की है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। उसमें ये इशारा पाया गया है कि जन्नत में नहर कौसर के पानी में दूध की तरह ग़ज़ाइयत और शहद की तरह हलावत यानी मिठास पाई गई है। अगरचे उसमें शहद की तरह शिफा भी होगी, लेकिन वहाँ मर्ज़ नहीं लाहक होगी, इसलिए बतौर दवा इस्तेमाल की ज़रूरत भी दरपेश नहीं आएगी। इसी तरह उस पानी में आंखों की ठंडक और ख्वाहिश की तलब पाई जाती है। यही नहर कौसर महशर के हौज़ कौसर का मंबा भी है, जिस तरह पहले तफसील बयान की जा चुकी है। उस नहर पर ऐसे परिंदे होंगे जिनकी गर्दनें ऊँटों की गर्दनों की तरह होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे ज़्यादा जन्नत में होगी। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत वाले लोगों की 120 सफ़े होंगी, उनमें 80 उस उम्मत की होंगी और तमाम उम्मतों की 40 सफ़े होंगी। औलिया उज़्ज़ाम के मनाजिल रफ़िया। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहकीक अहले जन्नत अपने ऊपर बाला खाने पर रहने वालों को ऐसे देखेंगे जिस तरह तुम मशरिक या मगरिब में उफ़क़ पर बाकी रहने वाले बहुत ज़्यादा चमकदार सितारे को देखते हो, क्योंकि जन्नत वाले लोगों में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत हासिल होगी। सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मनाजिल तो सिर्फ अंबिया कराम को ही हासिल होंगी, दूसरा तो कोई वहाँ नहीं पहुँच सकेगा। आपने फरमाया क्यों नहीं, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ये मर्तबा तो उन मर्दों को भी हासिल होगा जिन्होंने अल्लाह ताला पर ईमान लाया और रसूलों की तस्दीक की। जन्नत वाले लोग एक दूसरे को देखेंगे, आमाल के मुताबिक उनके मरातिब व मदारिज होंगे। औलिया उज़्ज़ाम को आलिशान बुलंद मोहल्लात हासिल होंगे, ज़ाहरी तौर पर भी उनको बुलंद मुकाम हासिल होगा, जिस तरह शान के लिहाज से उन्हें बुलंद मुकाम हासिल होगा। रोशन सितारे की तरह बुलंदी और नूरानियत हासिल होगी। जन्नत में कुछ लोग पस्त मुकाम होंगे, कुछ दरमियानी मुकाम में, कुछ बुलंदी पर। हदीस में लफ्ज़ रजाल इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब कामिल फिल अल रजलियत यानी जो बहुत कामिल लोग होंगे। जिक्र अगरचे रजाल का है लेकिन निसा औरतों को भी शामिल है। कामिल लोग कौन हैं? रब ताला ने बयान फरमाया कामिल लोग वो हैं जिनको तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह ताला के ज़िक्र से आराज न कराए। अल्लाह ताला पर ईमान लाने से मुराद ये है कि उन्हें कामिल ईमान, पुख्ता यकीन और इबादत में कामिल तौर पर अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो का मुकाम हासिल रहे। रसूलों की तस्दीक का मतलब ये है कि वो उनके लाए हुए
तमाम अवामिर और नवाही जिन कामों का हुक्म दिया गया है या उनसे रोका गया है के मुताबिक अमल करते हैं, साबरीन शाकरीन की सफ़ में कायम हैं और मुकाम रज़ा के दर्जे पर फाइज हैं। जब इंसान उन बुलंद मनाजिल को तय कर लेता है तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसको इनामात से नवाज देता है। इरशाद बारी ताला है, उन लोगों को सब्र की वजह से बतौर जज़ा बाला खाने अता किए जाएंगे। जन्नती लोगों को नींद नहीं आएगी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या जन्नत वालों को भी नींद आएगी? आपने फरमाया, नींद मौत की मिसल है, जन्नत वालों को मौत नहीं आएगी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदल्लिल जवाब इरशाद फरमाया कि जिस तरह इंसान मौत की हालत में होता है, नींद में भी उसकी ऐसी हालत ही होती है। जब मौत नहीं आनी तो यकीनन नींद भी नहीं आएगी। दुनिया में नींद की ज़रूरत इंसान को इसलिए होती है कि वो थकान महसूस करता है, उसे राहत की ज़रूरत होती है, वो नींद से पूरी करता है। लेकिन जन्नत में हर तरह का आराम ही आराम होना है, किसी किस्म की थकावट होनी ही नहीं, तो इस वजह से नींद की ज़रूरत भी दरपेश नहीं आएगी। जन्नत में इंसान को औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी। मोमिन को जन्नत में अगर औलाद की तलब हो तो उसी वक़्त उसको अता कर दी जाए, लेकिन मोमिन को जन्नत में औलाद की ख्वाहिश ही नहीं होगी। जन्नतियों के खुद्दाम और उनकी बीवियां। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाले लोगों को कम से कम 80,000 खादम और 72 बीवियां हासिल होंगी। जन्नती बीवियों की शान हदीस शरीफ में है, उनके हुस्न जमाल की वजह से उनकी पिंडलियों की हड्डी का मगज़ हड्डी और गोश्त के पीछे नुमाया नजर आएगा। यानी जन्नती हौरों को इस तरह लताफत और हुस्न जमाल कामिल तौर पर हासिल होगा कि उनसे इंसान के नफरत करने का तसव्वुर भी नहीं पाया जाएगा। हुस्न में सफाई, चमड़ा नर्म नाजुक, तमाम आज़ा में लताफत इस तरह होगी कि इंसान दुनिया में उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि पिंडलियों की हड्डी के मगज़ के सामने हड्डी और गोश्त हिजाब नहीं बन सकेंगे, क्योंकि हड्डी और गोश्त को शीशे की तरह सफाई और चमक दमक हासिल होगी। जन्नती हूर कभी नाराज नहीं होगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत खूबसूरत आंखों वाली सफ़ेद रंग वाली बीवियों से जमा होने का मुकाम है। वो अपने नगमों की आवाज़ बुलंद करेंगी। वो ऐसी आवाज़ होगी किसी ने उससे पहले ऐसी आवाज़ नहीं सुनी होगी। वो कहेंगी, हम हमेशा जिंदा रहने वाली हैं, हम कभी हलाक नहीं होंगी, हमें नेमतों से नवाजा गया है, हम कभी मुख्ताज नहीं होंगी, हम राज़ी रहने वाली हैं, कभी नाराज़ नहीं होंगी। कितनी खुशबख्ती का मुकाम है उस शख्स के लिए जो हमारा और जिसकी हम हैं। जन्नती बीवियां पाकीज़ा होंगी। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरातुम वहुम फ़ीहा खालिदून, सूरह बकरा। उनके लिए उन बागों में साफ़ सुथरी बीवियां हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी वो औरतें ख्वा हूरें हों या दुनिया की औरतें हों, तमाम ही हर किस्म के ज़ाहरी और बातनी ऐबों और गंदगियों से बिल्कुल पाक होंगी। यानी हैज़, नफास, पेशाब, पखाना, मनी, थूक, मैल और हर किस्म की बीमारी वगैरह से भी पाक होंगी और बदखुल्की, सख्त ज़ुबानी, नाफरमानी वगैरह से भी एकदम दूर होंगी। उनके चेहरे का नूर आफ्ताब की रोशनी को शर्मा देगा। अल्लाह ताला ने बीवियों का नेमतों में जिक्र किया, क्योंकि इंसान अपनी ज़ौजा का मालिक होता है, इसलिए ज़ौजा भी अजीम नेमत है। फ़वाइद, ख्याल रहे कि जो औरत जिस मुसलमान के निकाह में मरेगी वो जन्नत में उसी के साथ रहेगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से निकाह करना हराम था, क्योंकि वो जन्नत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास हैं। जिस औरत का शोहर काफिर होकर मरा या जो लड़की कुंवारी ही मर गई, उनका निकाह उन जन्नतियों में से किसी से कर दिया जाएगा जो लोग जन्नत के भरने के लिए उस वक़्त पैदा किए जाएंगे। और जिसकी बीवी काफिर होकर मरी या कुंवारी ही मर गई, उसके निकाह में सिर्फ हूरें होंगी। और जिसकी बीवी भी मुसलमान मरे, वो जन्नत में अपनी उस बीवी को भी पाएगा और हूरों को भी, लेकिन वहाँ ये दुनियावी बीवियाँ हुस्न जमाल में हूरों से किसी तरह कम नहीं होंगी। रिवायात में आया है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा और हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा, फ़िरौन की ज़ौजा, जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आएंगी। जन्नती बीवियाँ निगाहें नीची रखेंगी। तर्जुमा, उन जन्नतियों में नीची निगाहों वाली होंगी जिनको ना किसी इंसान ने छुआ होगा उनसे पहले और ना किसी जिन ने। बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? ये तो गोया याकूत और मरजान हैं, बस अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। सूरह रहमान।
इन बागात में जो महल्लात और मकानात उन जन्नतियों के लिए बनाए गए हैं, उनमें ऐसी औरतें होंगी जो शर्म हया का पैकर होंगी, उनकी निगाहें झुकी होंगी, वो अपने शोहरों के बगैर किसी की तरफ आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करेंगी। बाशरम व बाहिया होने के साथ साथ वो इतनी पाक दामन और इज्जत माब होंगी, आज तक उन्हें किसी जिन्नो इंस ने छुआ तक ना होगा। उनके चेहरे याकूत की तरह सुर्ख और उनके बदन मरजान की तरह सफ़ेद और शफाफ होंगे। आप ज़रा गौर फरमाएं, उनके ज़ाहरी हुस्न जमाल और उसकी सच्ची दिलरुबाई, उसकी पाकदामनी और उसकी आंखों का शर्मीलापन है। गोहर में आबे गोहर के सिवा कुछ और नहीं। ये ना हो तो वो हजरल दमन है, यानी कूड़े के ढेर पर उगा हुआ सब्जा। उसकी तरफ गधे तो लपक कर जा सकते हैं और उसको अपना तरनवाला बनाकर जोर से हींग सकते हैं, लेकिन एक शरीफुल नफ्स और बाज़ों का आदमी को तो उससे बदबू आएगी, उसकी सड़ान से उसका दिमाग फटने लगेगा। दुनिया में भी उम्मत मुस्तफ़विया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहू बेटियों को इफ़्फ़त व हया के जेवर से आरास्ता होना चाहिए, यही उनका हुस्न व जमाल है। ये कासरात अलतर्फ कौन होंगी? वो नेक बीवियां जो दुनिया में अल्लाह के नेक बंदों के निकाह में थीं, वही जन्नत में उनके महल्लात की जीनत बनेंगी। उनके अलावा उन्हें हुरें भी दी जाएंगी। नीज़ वो मुसलमान औरतें जो किसी के निकाह में न थीं या जिनके खामन जहन्नुम रसीद कर दिए गए, उनको भी उन जन्नती मर्दों जो मखलूक उस वक़्त तख्लीक होगी के साथ ब्याह दिया जाएगा। यही हाल मोमिन जिन्नों और बाईमान जिन्नियों के साथ होगा। इलामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ अक़वाल लिखने के बाद फरमाते हैं, गालिब गुमान यही है कि इंसानों को इंसान औरतें और हूरें दी जाएंगी और जिन्नों को जिन्न औरतें और हूरें अता होंगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की बीवियां अफजल होंगी या जन्नत की हूरें? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी दुनिया की औरतें जन्नती हूरों से अफजल होंगी जिस तरह अबरी अस्तर से। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी नमाज़ों, अपने रोज़ों, अपनी इबादत के बाइस वो अफजल होंगी। फिर फरमाया, अल्लाह ताला उनके चेहरों को नूरानी बना देगा, उनके जिस्म रेशम से नरम, उनके चेहरे सफ़ेद, उनके लिबास सब्ज़ और उनके ज़ेवरात सोने की तरह जर्द, उनकी अंगूठियाँ मोतियों की तरह और उनकी कंघियाँ सोने की होंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।